no introduction as he is a great teacher and true administrator. He is a professor of education at the School of Education, Indira Gandhi National Open University, New Delhi. He has more than 3 decades of teaching experience. He served as the chairman of National Institute of Open Schooling during the year 2015 to 20. During his leadership, the NIOS experienced a complete turnaround with many landmarks, new initiatives, including introduction of courses in Bharatiya Parampara, leading to award of secondary and senior secondary certificate in Indian knowledge tradition. He is a recipient of the President's Award for commendable contribution to digital initiative during the National Convention on Digital Initiative for Higher Education. He has also been named Paul Harris Fellow by the Rotary Foundation of Rotary International in appreciation of tangible and significant assistance given for the furtherance of better understanding and friendly relations among peoples of the world. He has also been the director of the distance education program of Sarv Shiksha Abhiyan and MHRD IGNOU project. Many publications and path-breaking research studies are also account to his credit. I welcome you once again, sir, with this brief introduction. In this session, sir will be speaking upon the global scenario of higher education. So now I am handovering the session to you, sir. Over to you, sir. Thank you. उनकी व्यवस्था थी, ये सब बातें सबके लिए उनको कहना पड़ता है कि बड़े अच्छे हैं, हमने बुलाया है तो अच्छे ही होंगे, क्योंकि हर बार यही करके शुरू करना कि he needs no introduction, every time he introduces. Thank you very much for all the kind words. You have heard Professor Saluja in the first session today, and he has talked about, I don't normally do all the felicitations and thank you very much, Veer Singh Saab, VC Saab, that all that I avoid that and I save that time because I really want to interact with you. You have already heard Saluja Saab about Indian knowledge tradition and our system of education, how we have contributed to the global knowledge economy 5,000 years back. And what we are talking about today to the National Education Policy 2020 or what the world is practicing derives from what our knowledge tradition has been, and what he said, ये शाश्वत है, eternal है, ये हमेशा सच है. तो ये कहना कि हमारी परंपरा, हमारे ज्ञान पुराना है और हम पश्चिम की तरफ देख रहे हैं, ये सही नहीं है. जो हमने कहा है दुनिया को दिया है वो शाश्वत है. लेकिन मैं 2 खंडों में आपसे बात करूंगा. I'll be spending about 90 minutes with you today and again 90 minutes tomorrow, largely reflecting on the idea of a university. What is a university? Who are you? What is expected of you? And in the larger canvas, what is the role universities play? हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? मैं बारी-बारी से बोलता हूँ, मैं स्वयं से बोलता हूँ. लेकिन मेरा काम है क्रिटिसिज्म करना एज अ टीचर. मेरा हिंदुत्व में विश्वास है और हिंदुत्व शाश्वत है, इसीलिए मैं क्रिटिसिज्म करता हूं और दोनों तरफ की बात करता हूं, क्योंकि वो नहीं करेंगे तब शाश्वत ये नहीं हो सकता है. The universities are at crossroads, especially Indian universities, and I think I'll be exiting the system in a couple of years. Saluja साहब मेरे अग्रज हैं, बड़े हैं, वो निकल के भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और हम करते रहते हैं एज एकेडमिक्स.
लेकिन आपको रिले रेस का डंडा हम पकड़ा के जा रहे हैं, तो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन होगा? यू आर ऑल इन योर 30s, maybe some late 20s. I normally start with this quotation of Jawaharlal Nehru. You don't need to write, I'll leave the PPT. So you can have a look later on. अभी सुनिए और question करिए. I will be most comfortable answering your questions and having a dialogue rather than a monologue. This is the first convocation address Nehru made after independence. The first convocation address to Allahabad University. And what Nehru said is very, very important about, or true about, universities, higher education. Although I must quickly add, if you read Henry Newman's book, The Idea of a University, it is largely the statements of Newman that Nehru's writer. Nehru never wrote for himself, somebody else wrote for Nehru. These are, I mean, I quote him because it's very, very good speech, although if you read Newman, you will find the same. A university stands for humanism. पूरे 1.5 घंटे जो आज सलूजा साहब ने कहा, वो यही तो कहा, यूनिवर्सिटी एजुकेशन का मतलब क्या है? शाश्वत है, ह्यूमनिज्म। वो ये नहीं बताता है कि हम दीवारों में दुनिया को बांटें। साव विद्या या विमुक्ते, विमुक्ते का मतलब वो जन्म मरण से मुक्ति की बात नहीं है, छोटी बातों से ऊपर उठ के बड़ी बात सोचने का मतलब है। यूनिवर्सिटी स्टैंड फॉर ह्यूमनिज्म। You know, the university campuses across the globe are the safest campuses. I have stayed in Britain. तो हम बाजार जब घूमने जाते थे, शहरों में जाते थे, तो लोग गाड़ी से जाते हुए चिल्ला के निकलते थे, गो बैक पाकी। कहाँ से आ गए तुम लोग? अपने देश जाओ, मेरे देश में क्यों हो? लेकिन कैंपस में कभी ये देखने को नहीं मिलता, because it is expected learned people in there, they know how to live together. What the education that treasure within कहता है, Taylor's का report, learning to live together. We know how to live together, and that is what a university about. So what is it? For tolerance. The university stands for humanism, for tolerance. We may not agree with each other. हम आपके विचारों से सहमत नहीं है, लेकिन हम आपको मौका देंगे कि आप अपनी बात रखें और आप भी हमारी बात सुने, तो हम दोनों अपनी अपनी बात करें। Maybe at the end of the day we say, I don't agree, but fine. For reason. लेकिन मैं जो समझता हूँ, क्यों समझता हूँ, पूरी बात जो सलूजा साहब ने कहा उसके लिए आर्गुमेंट दिया कि क्यों वो ऐसी बातें कर रहे हैं। हर एक के पीछे की कहानी उन्होंने सुनाई। एक लड़की आ जाती है, कहती है पढ़ा दो, क्यों पढ़ा देंगे? बताती है तुम्हें देती है, गुरु चुप जाता। For the advancement of ideas and for the search of truth. इसी की बात तो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने शुरू किया है, सच की खोज। ये मैकॉले का मिनट्स नहीं है। I wonder how many of you have read Macaulay's minutes? आपने नहीं पढ़ा है तो निश्चित पढ़िए। हम हर कोई मैकॉले कोट करते हैं एकेडमिया में, हायर एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन में, पॉलिसी प्लानिंग में, हर जगह मैकॉले को कोट करते हैं, लेकिन हमको आज तक 1% लोग नहीं मिले हैं जो मैकॉले का मिनट्स ओरिजिनल पढ़े हैं। मैं अभी आपसे हाथ नहीं उठाऊंगा, वो वेद खुल जाएगा। 11.5 पेज का डॉक्यूमेंट है। पर बहुत बार सलूजा साहब ने भारत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने क्या कहा है एजुकेशन के बारे में, और लार्जली वो रिफ्लेक्ट कर रहा है विवेकानंद को। आई हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राइटिंग ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। 5 years I was chairman in IOS, and by virtue of being the chairman of the National Institute of Open Schooling, I was an integral part. तो हमको एक एक शब्द याद है, एक एक एक्सप्रेशन याद है कि कौन सा एक्सप्रेशन क्यों घुसवाए हैं उसमें। आप आज रात में पढ़िएगा, कल पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट 32 पेजेस स्कूल एजुकेशन पार्ट। जो विवेकानंद कहते हैं कि the purpose of education is to bring out the best in an individual. हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण है, कोई ना कोई क्वालिटी है, उसको कैसे निखारा जाए, बाहर लाया जाए। हर एक इंडिविजुअल को, बच्चे से शुरू करके और एडल्ट तक, हम उसको कैसे बाहर निकालें, यही शिक्षा का उद्देश्य है और हायर एजुकेशन का भी है। आप इसीलिए पाएंगे कि अब हम लोगों ने 12 साल से
स्कूल एजुकेशन 15 साल किया है, क्योंकि 3 से 6 साल का जो क्रूशियल एज था वो हम लूज कर रहे थे बहुत सारे बच्चों का। इसलिए हमने 15 साल किया है कि 3 साल में लाओ बच्चे को, उसको मौका दो। क्या करना है, उसको पढ़ाना नहीं है, उसको खेलने देना है। क्या खेलता है बच्चा, कैसे खेलता है, क्या करता है, किसके साथ कैसे बिहेव करता है, उसी के आधार पर तय होगा। तब जो प्रधानमंत्री ने 11 जून 2014 को संसद में कहा था, उनका मेडन स्पीच था। जो पार्लियामेंटेरियन पहली बार कोई वक्तव्य देते हैं तो उनको मेडन स्पीच कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर का ये मेडन स्पीच है, सुनिए 11 जून 2014 का। You Google it and you'll get it. He said 70% of children live in villages. People live, he said. And they don't have good schools. They don't have good teachers. And then he said, can we not use technology to bring the best teachers to them? This is what your national education policy is about. Read chapter 22, 23. And this is whole of first 30 pages. तो वो बच्चे में क्या गुण है उसको निकाल के लाने के लिए उसको 3 साल से लाएंगे। और जो 70% बच्चे बाहर कर दिए, you know the policy says only 27% of the relevant age group is in higher education today. Only 27% of the relevant age group, that is 18 to 23, is in higher education. Why? The school education has failed 74%, 73% as of today. स्कूल एजुकेशन का स्कोर कार्ड क्या होगा? आपने 100 के 100 बच्चे सर्व शिक्षा अभियान में लाया और केवल 27 को हायर एजुकेशन में पहुंचाया, तो आपका रिजल्ट क्या है? एनालिसिस करना चाहिए, कल पूछेंगे क्यों। मैकॉले ने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं? मैकॉले ने कहा जरूर पढ़िए, ये बहुत ही सुंदर डॉक्यूमेंट है। By the way, Macaulay's brother-in-law Trevelyan had done extensive research on Indian education. He had traveled across the country to find out why is India such a rich country. इतना अमीर देश क्यों है, इतने अच्छे लोग क्यों हैं, इतने विद्वान क्यों? जिससे बात करो वही ज्ञान की बात करता है। कैसे ऐसा देश है? And he wrote that society and academia are well knit. Academia part of the society है। इसको बिल्कुल इस ताने बाने को नहीं खराब करना चाहिए। बट मैकॉले सेड दैट्स नॉट माय जॉब, ये मेरा काम नहीं है एज सेक्रेटरी एजुकेशन। मेरा क्या काम है? आई विल गिव अ पॉलिसी व्हिच विल प्रोवाइड वेस्टर्न एजुकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, वेस्टर्न नॉलेज इन इंग्लिश लैंग्वेज। डोंट फॉरगेट एंड रीड वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854, मच बिफोर all the policies. In fact, his policy is 1835, but 1854 policy says we are damaging, we must provide Indians education in their mother tongue. अगर आप बारी बारी से पढ़ेंगे NEP कहता है कि हम मदर टंग में एजुकेशन देंगे। हम हर जगह यही बात कर रहे हैं। 1854 का चार्टर एक्ट ये कहा है। But Macaulay said we will provide Western education in English language because that will create brown in color but white in thinking. ये देखने में तो भूरे होंगे, सोचेंगे हमारी तरह। इसलिए मैं बारी बारी से ये भी कहता हूँ कि डोंट थिंक कि मेरे बातों पर जो आप रिएक्ट करेंगे या जिसको जितना समझ सकेंगे वो आप समझ रहे हैं, वो उतना ही समझ रहे हैं जितना आपको हमने NCERT की किताबों के थ्रू परोसा है। और जो आपको सोचने का तरीका हमने दिया है, आप वही उसी तरह उन्हीं फिल्टर्स में सोचेंगे, क्योंकि वही फिल्टर्स से तो आप क्रिएट हुए हैं। मेरी बातों पर जो आपको रिएक्शंस होंगे या आप सोचेंगे कि ऐसा ठीक नहीं आएगी, इसके ये स्टेटमेंट गलत है, वो उसी के कारण, क्योंकि आपको जो NCERT की किताबों के थ्रू हमने परोसा है कि पूरा देश देखने में भूरा है, सोचने में अंग्रेज है। आज भी एक और कोटेशन है, जरूर देखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। द गार्जियन एडिटोरियल 18 May 2014. I am not making a very prepared speech because I often like to speak from my heart and extempore. I'll give you complete reference. Just wait a minute.
The Guardian, editorial 18 May 2014. Do that, Google. Somehow I lost the link today. Read the editorial's first 3 lines. Shh. Shh. आप उन्हीं वैसे ही रिएक्ट करेंगे, समझेंगे जितना आपको किताबों में परोसा गया है। ये हम आज नहीं समझ रहे हैं, हमेशा से जानते हैं कि the system of education creates human beings, filters or sort of prepares them to see and think the way we want. And then he said, they would be interpreters between us and the millions whom we govern. वो इंटरप्रेटर्स का काम करेंगे। कहाँ तो साविद्या या विमुक्त है, और कहाँ ये सोच कि ये इनको हमको इंटरप्रेटर्स बनाना है ताकि ये हमारे और आवाम के बीच में इंटरप्रेटर्स का काम करें। एंड फाइनली ही सेड व्हाट वाज इन हिज माइंड, दे विल हेल्प अस प्रोलॉन्ग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सो द पर्पस ऑफ एजुकेशन वाज कंप्लीटली सबवर्टेड। We actually became stews in the hands of the British. Those who knew English, those who had been to English schools, supported the British government and helped them prolong the rule. तो education ये करता है, but university stands for humanism, for tolerance, for reason, for the adventure of ideas, for the adventure of ideas. I may not agree with you, but I will tell you, ठीक है, I'm one of those, मेरे supervisor से मेरा कभी नहीं बना PhD, तो हम जो भी लिखते थे CV, I mean, he was a British CV, I'm not very comfortable, but then this is your baby. I said yes, so if you have to defend in your viva, I said yes, fine, and I defended my PhD. So we don't agree in academia, we often disagree, but we support, ठीक है। I remember, मेरा एक दोस्त था, है बड़ा strong Marxist, उसने अपना एक MPhil thesis लिखा और for tolerance, it stands for the onward march of the human race towards ever higher objectives. छोटी सोच नहीं, बड़ी सोच। If the universities discharge their duties adequately, then it is well with the nation and the people. न्यूमैन largely से ये कहते हैं, यूनिवर्सिटीज का इतिहास बहुत बार लिखा गया है। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटीज से अगर आप देखेंगे तो कम से कम 10 किताबें आपको मिलेंगी, उसका ही ये सॉर्ट ऑफ निचोड़ है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? I think the second part of it is it was sort of rearranged, so I hope it's there somewhere, but if it doesn't work, then what will happen? A nation will not survive. अगर ऐसा नहीं होता है, अगर universities become centers of bigotry, that's the word used by Nehru. If universities become centers of bigotry, then what will happen? अगर हमारी संस्थाएं, उच्च शिक्षा की संस्थाएं सही काम नहीं करें, बेईमानी चलें, आपका विश्वास होगा? आपके बच्चों का विश्वास होगा? हमको याद यहाँ क्यों खड़ा किया गया है? आओ डिफेंड करो अपने को। और आज के बाद अगर शाम को आप ये कहते हैं कि ये कहाँ से प्रोफेसर बन गया, क्या बात है? इसको पता नहीं है किसके सिफारिश पर घुसा। ये मुस्कुराहट हम कम से कम 50-500 जगह दिए होंगे, हर जगह यही मुस्कुराहट आती है। हम यूनिवर्सिटीज में अपॉइंटमेंट पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। To wake you up, to make you teachers of higher education, because that's our job. What is our job? Adventure of ideas and search for truth. बहुत मुश्किल होता है बोलना। So what do universities stand for? The modern history of education. I'll come to that question largely. एक question आपको छोड़ा है और ये questions आपको उठाते रहना है। अगर किसी भी देश को खराब करना है, खत्म करना है, तो यूनिवर्सिटीज को खत्म करिए, वो देश कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। वही हमारे देश की यूनिवर्सिटीज को किया गया।
सब चीज में है, अगले 30 साल आप ही करेंगे, हम तो जो कर चुके सो कर चुके। लेकिन जो मॉडर्न यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री इज 5000 ईयर्स ओल्ड। विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा, बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े अच्छे काम हुए हैं, बड़ा इतिहास उसका है। आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उनके जो प्रोसेसेस थे वो बड़े थे, उसी को लार्जली रेप्लिकेट किया। लेकिन जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सिटीज है वो अबाउट 1000 ईयर्स है। तो 1000 साल पहले जो यूनिवर्सिटीज का जन्म होता है वो कैसे होता है, ये थोड़ा इस पर रिफ्लेक्ट करने से आपको भी समझने में आसानी होगी। व्हाई यूनिवर्सिटीज एंड व्हाई एकेडेमिया? अभी सरसंघचालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक परम पूज्य मोहन भागवत जी ने कहीं पर कहा कि पंडितों ने, ये पंडित है कौन? पंडितों के बारे में कुछ कहा, पंडित है कौन? वो कास्ट नहीं है, वो हम आचार्य हैं, हम ज्ञानी हैं, इसलिए हम पंडित हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इस 1.5 घंटे में आपके दिमाग पर एक नया फिल्टर लगाने वाले हैं आज, और इसके बाद अगर आप मेरी बातों को ट्रस्ट किए तो इन फिल्टर से बाहर सोच नहीं पाएंगे। अगर हमें इतनी ताकत होगी कि 90 मिनट के बाद हम आपको ये जगा पाए, अरे क्या बात करते हो, अगर तुम्हारा वाइस चांसलर भी गलत कह रहा है, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम एक एम्प्लॉय नहीं हो, तुम राष्ट्र के लिए हो, तुम बड़े हो, तुम शिक्षक हो। यही ताकत है एक आचार्य में, पंडित में। तो हर कोई हमको कंट्रोल करना चाहता है कि सीपी शर्मा वही बोले जो हम चाहते हैं। यही यूनिवर्सिटी है, और क्या है? हम पढ़ा करके बच्चे को बाहर निकालते हैं और कहते हैं जाओ अब दुनिया में बताना कि मैं पाणिनेय हूं, मैं पाणिनि के चरणों में बैठ के पढ़ा हूं, मैं पाणिनि से पढ़ा हूं, मैं पाणिनेय हूं। हम क्यों बोलते हैं कि मैं ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट हूं? हम क्यों बोलते हैं हम MIT प्रोडक्ट है? हमारी पूछ क्यों होती है? अब हम भारतीय यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेंगे, बड़े कंट्रोवर्सी में हम ऑलरेडी रहते हैं, अभी हम वो खतरा नहीं बोलेंगे कि जब भी आप कहते हैं फलानी यूनिवर्सिटी पढ़े, अच्छा जहाँ डिग्रियाँ बिका करती हैं, चैप्टर 15 अपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का 15.2 पढ़िए, हम लोगों ने लिख दिया है 10,000 ऐसे कॉलेजेस हैं जो डिग्रियाँ बेच रहे हैं। पॉलिसी में आपके भारत सरकार की पॉलिसी ने लिखा है। ये हमारे 40,000 कॉलेज हैं देश में, उसमें 15.2 आप गूगल करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के वेबसाइट पर डाला हुआ है, हमने लिखा है 10,000 ऐसे कॉलेजेस हैं, बीएड कॉलेजेस, जो पैसा लेके डिग्रियां बेचते हैं। तो आप जो कहते हैं फलानी यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट है, तो अच्छा समझ में आ गया। तो हमको कंट्रोल करना चाहता है हर कोई, राजा भी चाहता है, और जो दूसरे लोग समाज को कंट्रोल करते हैं वो भी चाहते हैं। नॉलेज कंट्रोल्स, दैट इज व्हाई एवरीवन वांट्स टू कंट्रोल एकेडेमिया, एंड दिस वाज प्रिवेलेंट 1000 years back. The king was powerful. भारत को तो लगातार पिछले 1000 साल से प्रहार होते होते हमारे सारी यूनिवर्सिटी जल गए, हमारा कोई नॉलेज ट्रेडिशन रहा नहीं, साक्षरता हमारी 100 साल पहले 18% पहुंच गई, हायर एजुकेशन में सिर्फ 60% था। तो हम जो दुनिया के सबसे अमीर देश थे, नॉलेज इकोनॉमी के कारण वो सबसे गरीब देश बन गए। लेकिन दुनिया का ये ट्रेंड था, 1000 साल पहले क्या था? राजा था और चर्च था। ये हमेशा से लड़ाई, राजा पावर, सेंटर ऑफ पावर, जो इकोनॉमी कंट्रोल करता है, जो डिफेंस कंट्रोल करता है, और जो रिलीजन को कंट्रोल करता है। Marx was not wrong in saying religion is the opium of the masses, because we adhere to that, what the church says. जो चर्च कहता है उसको हम बिल्कुल विश्वास करते हैं, राजा से डर के विश्वास करते हैं। तो राजा भी चाहता है कि
जो नॉलेज है वो हमारे कंट्रोल में रहे, ताकि समाज को कहे राजा कितना महान। और चर्च भी चाहता है कि ये कहे कि बाइबल कितना महान। एंड दैट इज वेयर द होल न्यू मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन स्टार्ट्स। द चर्च कंट्रोल्ड और brought all the knowledgeable people and said, go into the society and spread the knowledge of Bible. समाज में जाओ, लोगों को बाइबल के बारे में बताओ, जीसस के बारे में बताओ, बोलो कितना महान था। और उसका घर कहाँ है? चर्च में। ताकि सब लोग यहाँ आए और जब हम कहें कि ऐसा राजा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ये नहीं ठीक है या वो, तो लोग हमारी बात सुने, राजा की बात नहीं सुने। क्योंकि वो जो वहां पादरी बना हुआ है उसको तो है नहीं ताकत, पंडित तो है नहीं वो, अंडरस्टैंड, पंडित वो आचार्य तो है नहीं। तो राजा चाहता है कि हम कंट्रोल करें, चर्च चाहता है हम कंट्रोल करें। तो ये चाहते हैं नॉलेजेबल जिनको कि चर्च सॉर्ट ऑफ एम्प्लॉय करता है और कहता है। लेकिन फिर लोग पूछते हैं क्वेश्चन कि अच्छा ये बताइए कि जीसस ने ऐसा किया तो ये सही था क्या? हमने कहा कि आप प्रश्न करिएगा। सुलोजा साहब ने भी सुबह में कहा कि प्रश्न करो, हम जवाब देंगे, और बताया कि क्या इंपॉर्टेंट है डायलॉग का। आपका छोटा बच्चा क्वेश्चन करता है, आप जवाब नहीं दे सकते। तो जब जाकर के पढ़ाए, लोगों ने पूछा, हम रामायण पढ़ाएंगे, लोग पूछेंगे कि सीता को अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी सर, राम क्यों नहीं दिए? हमको जवाब देना पड़े, चाहे हम सही दें गलत दें जो भी दें, लेकिन हमको एक जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हम टीचर हैं। हमने स्वीकार किया, हम यहाँ खड़े होकर के डिस्कोर्स देंगे तो आपको अधिकार मिलता है क्वेश्चन पूछने का। चर्च ने कहा नो, यू आर नॉट सपोज्ड टू इंटरप्रेट बाइबल, द बाइबल इज ऑलवेज राइट। सो द learned said no, that won't happen. My students ask me questions. How can I say wrong? No, that cannot happen. That's not academia. That's not university. We may say, you are also right, I am also right, you have a point of view, I have a point of view, let's live with our views and test it in the society. But I cannot say I am right, you are wrong. I cannot say I won't take your questions. That's not academia, that's not universities. तो ऐसे ही एक व्यक्ति था पीटर एबेलार्ड, जिसने चर्च को कहा थैंक यू। ही वॉज अ प्रीस्ट। प्रीस्ट में ट्रेडिशन है शादी नहीं करने की। He married, he produced children, and he married many times. He came out of the church and he crossed Seine. फ्रांस में चर्च से बाहर निकला, सेन नदी क्रॉस करके उसने अपना इंस्टीट्यूशन बनाया, and that is sort of the beginning of the modern university system. The modern university system, on which Oxford, Cambridge, they are all established. What I want to emphasize is the backbone of higher education, or education for that matter, is autonomy. Is autonomy. Autonomy, not anarchy. Autonomy, not anarchy. I hope you distinguish between autonomy and anarchy. आपको वो करने का अधिकार है जो आपका विचार है, लेकिन आप गाली देंगे हमको, ये तो नहीं अधिकार है। हम आपको अब्यूज करके ये हमारा अधिकार नहीं, वो ऑटोनॉमी नहीं। इसीलिए मैं बारी बारी से कहता हूँ कि जेएनयू में जो नारे लगे, देश तुम्हारे टुकड़े करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, वो गलत है, वो एनार्की है, वो ऑटोनॉमी नहीं है। ऑटोनॉमी बड़ा सरोजा साहब ने कई बार कोट किया राधाकृष्णन कमीशन को। राधाकृष्णन कमीशन का रिपोर्ट जरूर पढ़िए, मेरे मेन स्ट्रीम में नहीं है लेकिन उसको मैं कोट करूंगा। 4 चीजें राधाकृष्णन कमीशन कहता है। Universities have autonomy to decide about courses that they will teach, to decide about the curriculum that they will adopt, to decide about the process of imparting and assessment and certification. तो यूनिवर्सिटीज तय करेंगे कि हम कौन से विषय हम नहीं पढ़ाएंगे। वो इसीलिए आपकी यूनिवर्सिटीज का एकेडमिक काउंसिल होता है जो तय करता है, वो सुप्रीम है, वो स्टैट्यूटरी है। और यूनिवर्सिटीज क्रिएट होते हैं थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। हम में से बहुतों को ये नहीं अंदाज रहता है
कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बड़ा अच्छा रिपोर्ट और है, कांति विश्वास कमेटी रिपोर्ट, नो एंड इट्स अवेलेबल ऑन द नेट, इट इज डाउनलोडेबल। कांति विश्वास कमेटी रिपोर्ट, ये वेस्ट बंगाल के एजुकेशन मिनिस्टर थे, लेफ्ट गवर्नमेंट के, ज्योति बसु गवर्नमेंट के ये मिनिस्टर थे फॉर एजुकेशन, और ये चेयरमैन थे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन के की सब कमेटी थी, कांति विश्वास कमेटी ऑन ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटीज। इट्स अ ब्रिलियंट रिपोर्ट। I have not read a better document on autonomy than this Kanti Viswas Committee report. कहता है कि ये यूनिवर्सिटीज थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर इसीलिए बनते हैं क्योंकि इनको संसद का या विधानसभा का अधिकार या पावर्स मिल जाता है। जब यूनिवर्सिटी कुछ कहती है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि वो संसद के द्वारा क्रिएटेड है। टू एक्सप्लेन दिस, लेट मी टेल यू, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड पास 3 एग्रीकल्चर बिल्स। आप सबको याद होगा, बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। प्राइम मिनिस्टर टेलीविजन पर आए और क्या बोले, आई विल रिक्वेस्ट द पार्लियामेंट टू विथड्रॉ दीज बिल्स, दैट्स he had no powers to do that. He may be the prime minister, he may be the leader of the house, but then he did not have the power to withdraw these acts. He had to say, I take it back to the parliament. ये तीनों acts फिर parliament में गए, parliament ने withdraw करने का permission दिया। इसीलिए जब कोई यूनिवर्सिटी क्रिएट होती है तो वो through an act of parliament या state legislature इसलिए होती है कि अब उसको वो सारे पावर्स हैं, उसको कोई भी ओवररूल नहीं करेगा। जब कोई कोर्ट में केस जाता है तो कोर्ट कहती है अपना एक्ट लाओ, क्या एक्ट पास हुआ था, और उसके हिसाब से होता है। इट्स वेरी पावरफुल। तो क्या कहता है, कहता है हर यूनिवर्सिटी का एक्ट ये ऑटोनोमस होगा, इस पर सरकार नहीं अपना अधिकार जमाएगी, सरकार के बियॉन्ड होगा। एंड यू हैव हिस्ट्री, chief ministers never used to enter university campuses, and no government would call a vice chancellor to the office of chief minister or minister for education, because the vice chancellor heads an autonomous body. ये क्यों है, ये क्यों दिया गया अधिकार? इसलिए क्योंकि नॉलेज इज बियॉन्ड। हमसे एक्सपेक्टेड है कि जो हम नॉलेज है उसको प्रिजर्व करेंगे, और जो सलूजा साहब बारी बार से समझाए, रीडिस्कवर करेंगे, रीइन्वेंट करेंगे, ट्रूथ को खोजने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए सरकारें और पूरी संस्कृति कहती है इसको कोविटेड रखो, इसको अलग रखो, इसको ऊपर रखो, इसको बाहर रखो, इसको कंट्रोल मत करो। कंट्रोल करोगे तो नई बात नहीं निकल के आएगी। Autonomy of institutions is supreme, and what does it mean by autonomy of institution? इस दरवाजे के अंदर कोई कंट्रोल हमको नहीं करेगा। इसलिए सीसीटीवी का मामला तो बड़ा गड़बड़ है। हमारे सामने एक सीसीटीवी लगाया गया, मेरे लेक्चर को रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके बाद हमको उस पर एक्सप्लेनेशन भी होगा। कह रहे आपके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ये बोल दिया, आपने चीफ मिनिस्टर साहब के खिलाफ ये बोल दिया, माननीय नहीं लगाया। इस दरवाजे के अंदर टीचर, मेरा आपका रिलेशन इंडिपेंडेंट है। हम जो बोल रहे हैं उसको आप प्रेजेंट करेंगे एज माय स्टूडेंट्स टुडे, नॉट एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, इज अ पीयर ग्रुप इंटरेक्शन, but normally when we lecture to students. So you and me, we have a relationship. You have the right to question, government doesn't have. Let us preserve that if you want to understand universities. इसको अगर हमने प्रिजर्व नहीं किया तो यूनिवर्सिटी नहीं। हमको याद पड़ता है, मैं जानबूझ के ये सारे कोटेशन इसलिए देता हूँ, माननीय कृष्ण गोपाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारवा हैं। मैं अपनी माँ के याद में हर साल 3 अप्रैल को एक मेमोरियल लेक्चर कराता हूँ, और 2018 में माननीय कृष्ण गोपाल जी को हमने बुलाया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, उन्होंने बोला था और उन्होंने कहा ये बायोमेट्रिक लगाने का काम तो बहुत गड़बड़ है। जब भी टीचर से आपने बायोमेट्रिक लगवाया, आई डोंट नो लगवा दिया हो पीएल सिंह साहब तो माफी चाहूंगा, टीचर्स का कभी बायोमेट्रिक नहीं लगा है क्या? नहीं लगाया ना, थैंक गॉड।
नहीं तो मैं कंट्रोवर्सी में पड़ जाऊँ। मैं जाके हर जगह बोलता हूँ और जब हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन सुनते होते हैं तो वो फिर नाराज होते हैं, शर्मा जी ये क्या कह गए। टीचर्स का बायोमेट्रिक कभी नहीं। मैं जितनी बातें कर रहा हूँ इसको जरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पर ध्यान से पढ़िए। इट इज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट पॉलिसी आफ्टर मैकॉले। मैकॉले का 11.5 पेज का था, ये केवल 62 पेज है। उसमें भी 30 पेज स्कूल एजुकेशन, 32 पेज और बाकी 30 पेज हायर एजुकेशन पर है। आपको जितनी बातें मैं कह रहा हूँ वो सब उसमें डाली गई हैं। हमने स्कूल एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में कहा है टीचर्स का नो ट्रांसफर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहाँ है। और बाकी चीजें और बात करेंगे, लेकिन नो बायोमेट्रिक फॉर टीचर। हमको बायोमेट्रिक लगा कि तो तुमने अंदर कर दिया। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, विंडो कॉलेज का सर है दिल्ली का, एक टीचर से जो आते ही नहीं थे कॉलेज में, दैट्स रॉन्ग। उनको प्रिंसिपल साहब ने कहा अरे आप आते नहीं है, बच्चे इंतजार करते रहते। कहता अच्छा मैं जाता हूँ क्लास में। तो वो गए क्लास में, कह रहे तुम लोग शाम में दिखते नहीं हो भाई, तुम लोग कहाँ रहते हो? कहा सर शाम में तो। अरे क्यों, खेला करो, प्लेग्राउंड है। वो प्रिंसिपल साहब को 3 लाख रुपया दिया गया था किट खरीदने के लिए। किट तो देखे होगे तुम लोग? नहीं सर। अरे कैसे 3 लाख रुपए मिला है किट के लिए? वो क्लास खत्म हुआ, सारे बच्चे प्रिंसिपल साहब के कमरे में, सर वो 3 लाख कहाँ गया किट वाला? तो इसीलिए एबलार्ड को कंट्रोल करना था। एबलार्ड अगर जाके समाज में बता दिया कि पादरी क्या क्या करता है तो पादरी चढ़ पड़ जाएगा फेरे में। तो उसको कहा कि बाइबल को इंटरप्रेट मत करना, जो हमें कहूँ वह जाके सुनाना। तो हमको हर कोई कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन समाज हमको ऑटोनॉमी देती है। वो याद रखो, और क्यों देती है? क्योंकि तभी नॉलेज क्रिएट होता है। I have quoted all these universities which are most well known, Bologna, Oxford. These institutions have maintained autonomy. They have maintained autonomy. And now I will leave it to you to find for yourself. मैं दूसरा जो इशू लूंगा वो है टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग का। हम कुछ फर्क करेंगे कि हमारे यूनिवर्सिटीज को जो 100 में नहीं है, क्यों नहीं है। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ द parameters which make good institution. I think I will refer to them obliquely here. Appointments are most important. Facilities, expenditure. थोड़ा हम बात करेंगे कि क्यों इंटरनेशनलाइजेशन जरूरी है और क्या उसका डायनामिक्स रहा है। There are 13 performance indicators divided into 5 areas: teaching, research, citation, industry, income, international outlook. ये 5 एरियाज हैं जिस पर कि हम यूनिवर्सिटीज को एसेस करते हैं। Most people have not. There is also big economy, big business. आपकी यूनिवर्सिटीज कितने अच्छे हैं आप देख लीजिए। जिन यूनिवर्सिटीज की यूनिवर्सिटीज अच्छे हैं वो सबसे अमीर देश है, वो सबसे अमीर देश है। बेस्ट यूनिवर्सिटीज है कि नहीं है, आप अपने ध्यान में नाम लाइए और देखिए कि वो यूनिवर्सिटीज कौन से हैं। MIT, हार्वर्ड, नेक्स्ट ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, they are the richest countries. Why? Education is sort of monopoly business. Monopoly business. मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ, मैं अपने बच्चे को पढ़ाने का 10,000 रुपया दूंगा घंटे का। आप भी सोचते हैं यार क्या करेंगे पैसे का, बच्चा पढ़ गया तो जो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं वो सबसे महंगे भी हैं। हमारे IITs 2 लाख रुपया साल का लेते हैं, हम बहुत चिल्लाते हैं। कुछ अंदाजा है MIT का क्या फीस होगा? MIT नंबर 1 है दुनिया का यूनिवर्सिटी रैंकिंग पे। MIT का क्या फीस होगा एक साल का? $10,000, $10,000 to $12,000 US. 10,000 कितना हुआ? सर 8 लाख। अरे कहाँ? सेमेस्टर से सेमेस्टर। क्या? I will make a light comment. क्या इंडियन की तरह सोचते हो? $30,000 है। 1 करोड़ है एक साल का फीस MIT का।
1 करोड़ है MIT के मास्टर्स का फी, और केवल 80 बच्चे वो लेता है साल में। और क्या अंदाज है कहां से सबसे ज्यादा बच्चे जाते हैं? इंडिया से, सेकंड चाइना से। हम लोग सब गरीब देश हैं। So we are poor because we pump in money into America, because we are poor and we have the paying capacity. The British children don't go to Harvard and MIT, and they can't even get admission. It's not by money. Let me tell you, admission is purely on merit. Only when you are admitted you are allowed to pay. Not that if you have money you will go and pay the bill and get admission. No, you first have to be meritorious and then rich to pay that fees. तो आपका जो सबसे तेज बच्चा है वही सेलेक्ट होगा और वो भी फीस देगा। और यहाँ पैरामीटर क्या है? स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर नेशंस 2.5%। ये बताओ दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही, फॉरगेट अबाउट सुपौल यूनिवर्सिटी, फॉरगेट अबाउट जौनपुर और आजमपुर, और यहाँ तो विदेशी बच्चे कहाँ से आएंगे वो तो भूल जाओ। हाँ, वो जो हमने पॉलिसी में लिखा ना 10,000 कॉलेजेस डिग्री बेचते हैं, तो उसमें भर लिए आए कहीं से थर्ड वर्ल्ड के बच्चे डिग्री खरीदने। लेकिन अदरवाइज अगर हमें ट्रैक करना चाहें टैलेंट, तो कौन आएगा? तो कौन आएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ने? लेकिन पेरिस से ब्रसल्स का डिस्टेंस केवल 2 घंटे है। इट्स अबाउट 100 माइल्स। पेरिस से लंदन की दूरी 3 घंटे है, उनकी चैनल क्रॉस करना है। 3.5 घंटे में ट्रेन पहुंच जाती है पेरिस से लंदन। तो वो विदेश हो गया। और जो कन्याकुमारी से बच्चा चला आ रहा है दिल्ली पढ़ने के लिए, वो विदेशी नहीं है। आपको ये 2.5% कैसे मिलेगा? फैकल्टी फ्रॉम अदर नेशंस 2.5%। It's true, I agree on that. Both are important. You must have multicultural campuses. You must have multicultural campuses. हम यहाँ केवल एक ही धर्म के लोग बैठे हों, एक ही जात के लोग बैठे हों, एक ही प्रदेश के लोग बैठे हों। हमको पता है कोई केरल से नहीं है, केरला इस तरह बड़े बेवकूफ होते हैं, हम निकल जाएंगे बोल करके। लेकिन कोई कहता है कि यार कैसे बेवकूफ की बात करते हैं, आपने ये कैसे कर दिया? तो जब आपके पास तमाम देशों के बच्चे होंगे, तमाम कल्चरल बैकग्राउंड के होंगे, तमाम लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड के होंगे, और वही जो हम बात कर रहे हैं टॉलरेंस की, तो टॉलरेंट कैंपसेस तभी बनेगा जब मल्टीकल्चरल होगा। मैं केवल एक प्रश्न छोड़ूंगा, भारत यूनिवर्सिटीज को खोज के देखो, 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी का कितने टीचर हैं? वो यूनिवर्सिटी नहीं है, वो यूनिवर्सिटी नहीं है। Oxford has faculty from 40 countries. I don't agree on this. I don't agree on this point system. Oh dear. I don't agree on this, but then this is important. Your campuses must be multicultural, multi-religious, multi-ethnic, multilingual. Only then we will be able to make campuses humanist. हमारे campuses एक्चुअली इंडिया में नहीं है। हमारे स्टूडेंट्स तो नहीं है, कहाँ से आएगा गरीब बच्चा? टीचर्स भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्या बात है? हमको टैलेंट 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर से बाहर नहीं मिलता है। आई रिमेम्बर राजस्थान यूनिवर्सिटी इन 70s had faculty from half the states. राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर 70 के दशक में राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर वाइब्रेंट लीडिंग इंस्टीट्यूशन होता था, आज नहीं है। I was appointed a lecturer in Rajasthan, in Kota Open University. MLA made a question in assembly कि कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में एक बिहारी का अपॉइंटमेंट हुआ है, क्या हमको कोई राजस्थानी नहीं मिला था? और ये क्वेश्चन कैसे एक्सेप्ट हुआ? ये शर्म की बात है। We must have multicultural campuses, and talent is the only criterion. Talent has to be the only criterion. पीएन सिंह साहब ने मुझे टॉपिक यही दिया है, इसीलिए मैं इन बातों को कर रहा हूँ। सारी बातें कंट्रोवर्शियल हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। कैंपसेस अगर बनाने हैं, एकेडेमिया को ठीक करना है, एनईपी को हम कहें जो भी, मैं 2 बातें कहता हूँ क्योंकि आई हैव लिव्ड दिस पॉलिसी। दिस इज नॉट अ सिंगल थिंग व्हिच हैज बीन सेड फॉर द फर्स्ट टाइम।
कोई भी ऐसी बात नहीं है जो पहली बार इस पॉलिसी में कही गई। हम लोगों ने सारी अच्छी चीजें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने ही कई बार ये कहा था कि पहले अच्छी बातें नहीं कही गई, ये बात नहीं है, उसको भी लाओ। इनफैक्ट आई एम प्रिवी टू दैट डिस्कशन। उनके पास जब पॉलिसी लेके गए तो प्राइम मिनिस्टर ने डांट लगाई, कही कि ये पॉलिसी मैं कैसे लागू करूंगा, क्या ले आए, जाकर के कोठारी लागू कर दो, इतना बढ़िया पॉलिसी है, हमको वो बताओ जो कर सकते हो। फिर लौट के आए लोग, ये 62 पेज का डॉक्यूमेंट बना है, तो आप देखेंगे कि वो जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है सुब्रमण्यम का, सुब्रमण्यम से भी मेरी बात लंबी बात हुई थी, फिर कोठारी ये कस्तूरी रंगन का, वो दोनों ये नहीं है, ये 62 पेज बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ये वो बातें हैं जो पहले अच्छी बातें कही गई और अब उसको लागू करने का प्रयास है। इसमें वही बातें हैं जो लागू होंगी। तो ये बातें पहले नहीं कही गई ऐसा नहीं है, लागू नहीं हुई, इसको लागू करना तो समझेंगे आप तभी लागू करेंगे। आपको जानना चाहिए कि कैंपसेस मल्टीकल्चरल होना चाहिए, तो फैकल्टी बनाती है। हम जो काम करते हैं वो छोटे काम होते हैं जिसके कारण नुकसान होता है यूनिवर्सिटीज का। मेरे ऊपर क्वेश्चन हुआ कि भाई नॉन राजस्थानी कैसे सेलेक्ट हो गया, ये प्लॉट है, कोई भी कोट करेगा दुनिया से। Rajasthan University used to be one such university where people from all over the country applied and went to Jaipur to stay and teach. That was a very tolerant town. आपका town कितना tolerant है, आपके लोग कितने tolerant हैं, वो आपके students and faculty बनाता है। Keep in mind when you are in universities. Keep in mind when you are assessing universities. आप कहीं भी जाएंगे पूछिए आपके यहाँ कितने लोग बाहर के, कितने लोग दूसरे स्टेट से आते हैं। आपका स्टेट टॉलरेंट नहीं है तो कैसे आएगा? टॉलरेंट बनाना कैंपसेस का काम होता है। दोनों बातें साथ साथ। हम बहुत बड़े देश हैं तो ऑब्वियसली बहुत दूर से बच्चे नहीं आएंगे, इसलिए उसको फॉरेनर मानना ठीक नहीं है, इसलिए हम इस स्केल को एग्री नहीं करते हैं। लेकिन अलग अलग कल्चर्स के लोग आने चाहिए, बच्चे आने चाहिए, ये जरूरी है, तभी कैंपसेस मल्टीकल्चरल होंगे। दुनिया के जो यूनिवर्सिटीज अच्छा कर रहे हैं वो इसलिए कि वो मल्टीकल्चरल हैं और वेलकम करते हैं बेस्ट टैलेंट को दुनिया से। आई नो सुदीप्तो कविराज का नाम, पता नहीं आप में से कोई पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होगा तो जानते होंगे। आई डिडंट एग्री विद हिज आइडियाज, बट देन ही वाज इनवाइटेड एंड ही लेफ्ट द कंट्री। लीडिंग माइंड है वो, और इतिहास यही है। जितने बड़े लोग आप जानते हैं आज, हम अगेन अमर्त्य सेन के आइडिया से एग्री नहीं करें, लेकिन बड़ा नाम है वो अपने आर्ग्यूमेंट रखता है बड़े शिद्दत से, उसको काटना बड़ा मुश्किल होता है। उसके आइडियाज ठीक है, वो भारत को डेनिग्रेट करके अपने आइडियाज बेचता है जो दुनिया सुनना चाहती है, लेकिन उतना ही पावरफुल हमारा आर्गुमेंट होना चाहिए, हम नहीं बना पा रहे हैं। दोनों बातें साथ साथ। कोई जरूरी नहीं है कि फॉरेनर स्टूडेंट हो लेकिन मल्टीकल्चरल हो, कोई जरूरी नहीं है कि विदेशी टीचर हो लेकिन पूरे देश के टीचर्स हो, ये जरूरी है। स्लोली कैंपसेस हैज बिकम गेटोस। मेरी बात अगर ठीक से समझना, इसलिए कि यार हम तो खेल के निकल गए, जो मैं कह रहा हूँ वो तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए कह रहा हूँ। मंत्रियों के बच्चे थोड़ी भारत में पढ़ते हैं, हम देखते नहीं कितने मंत्रियों के बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं। It's very hurting, but that's important for academia. तो दोनों बातें, एक तो कि फैकल्टी, इंस्टीट्यूशन, एंड इट विल ब्रिंग इकोनॉमी, इट विल ब्रिंग गुड मनी टू योर कंट्री। इसका तीसरा जो है जर्नल पब्लिकेशन, अगेन who trusts Scopus and UGC? Who trusts Scopus and UGC? I have interviewed people. I have interviewed individuals for professor. सर ये पब्लिकेशन जर्मनी से है, और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं। तो जब मेरा टर्न आया तब तक मैं पढ़ रहा था, मैं कहा कि ये आपने कितने का डेटा, कितना सैंपल साइज क्या था? तो प्रोफेसोरियल कैंडिडेट बोलती हैं कि सर याद नहीं पड़ रहा। ये जर्मनी से पेपर पब्लिश्ड है, ये एड्रेस जर्मनी का है, छपा दिल्ली से है। ये एपीआई है आपका, ये एपीआई है आपका। I know I'm being too critical, but that I am, because I am worried about my nation, and I am worried about, and that is why I started by saying my स्वयं मैं इन्वेस्टर्स के बारे में चिंतित हूँ, इसीलिए बात कर रहा हूँ। मैंने पूछा क्या सैंपल साइज था, 2 साल।
The abstract said this paper is based on a sample size of 36, and in the conclusion it said it's based on a sample size of 42. You have to critique. This cannot happen in Western universities, in the best of universities, the first 100 universities, and that is why you are not in first 100. That is why you are not in first 100. इस पर दोनों चीजें हैं. ये मैं पावर पॉइंट छोड़ूंगा, इसको बाद में देखिएगा, पढ़िएगा भी, क्योंकि क्राइटेरिया यहाँ लिखा है और स्केल यहाँ डाला हुआ है. ये दोनों को पढ़िएगा, क्या पता चलेगा कि क्या क्यों ये इंपॉर्टेंट है, और उसको दोनों तरह से एग्जामिन करिए कि फॉरेन स्टूडेंट फॉरेन टीचर होना जरूरी है कि नहीं है. अगर आपके BHU में देश के 18 राज्यों से टीचर है तो ये यूनिवर्सिटी जरूर वाइब्रेंट है कि वो टीचर यहाँ अप्लाई करके आना चाहता है. क्यों नहीं आना चाहता है केरल का आदमी आपके, क्यों नहीं आना चाहता है कश्मीर का आदमी, क्यों नहीं अप्लाई करता है या सेलेक्ट होता है मणिपुर का आदमी, ये सोचने वाली बात है. रिसर्च रेपुटेशन among the peer 18% marks. What I just said, I don't trust publication of my colleagues. I've given you example. Look at your publication. ये कैसे होता है पता है? 18% कैसे नंबर मिलता है? ये पीयर ग्रुप से पूछ के पता चलता है कि मैडम आपकी कलीग है, कैसा लिखती है, कैसे पब्लिकेशन है. हमने इंटरव्यू में पूछा है और कैंडिडेट बोले हैं नहीं सर ये तो 5,000 लगा था छपने, इस पेपर का छपने का 10,000. ये कॉमन है. तो आपको क्या लगता है, हम और आप मुस्कुरा रहे हैं, गिगल कर रहे हैं इस रूम में, ये सर्वेयर्स को नहीं पता है इंडिया में टीचर्स कैसे पब्लिश कर रहे हैं, वो क्या नंबर देगा. दोनों बातें हैं. पब्लिकेशन एक तो होना चाहिए, नहीं हो रहा है, और जो तरीका है इनका ठीक कहीं ना कहीं है, तो हमको देखना चाहिए कि क्यों हमारी यूनिवर्सिटी पीछे जा रही है, कैसे ये 2040 में वाइब्रेंट होंगे. NEP बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट है. इट इज सॉर्ट ऑफ द बेस्ट रिकमेंडेशंस ऑफ ऑल द पॉलिसीज, बट हाउ वुड इट हैपन if universities become centers of psychiatry? That slide will come somewhere. I think I must not have removed it. Somehow we have pushed topsy turvy ho gaya. Universities research income. Universities research income. बहुत बातें हम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री, एकेडेमिया, इंडस्ट्री का, लिंकेजेस का, फंडिंग का. I often appear on television. एजुकेशन पर कोई डिस्कशन होता है तो मैं जरूर बोलता हूँ. हमने एक अपने, और इसको हमने टेलीविजन पर कह दिया इसीलिए ये कोट कर रहा हूँ. उसको हमने कहा कि यार तू ICSSR का आया है वो अप्लाई कर दो मेजर प्रोजेक्ट के लिए. का नासा फाइनेंस डिवीजन तो जीने नहीं देता है अगर आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया. वो सब ये समझते हैं कि अगर आपने कागज खरीदा तो जरूर बिना खरीदे बिल लाया होगा. यूनिवर्सिटीज डोंट ट्रस्ट टीचर्स, और हमको उसी तरह ट्रीट करते हैं जैसे कि वो किसी चोर बेईमान को करते हैं. तो कोई टीचर भी एक लेना नहीं चाहता है, और लेने का जो तरीका है, मैंने हर बार ये क्वेश्चन पूछा है टीचर से, हाउ मेनी ऑफ यू फील कि बड़ा ऑनेस्टली अलॉट होता है प्रोजेक्ट्स, जेन्युइनली होता है, मेरिट पर होता है. टीचर्स डोंट ट्रस्ट योर एजेंसीज. टीचर्स डोंट ट्रस्ट योर एजेंसीज. सब कहते हैं सर वहाँ पुल कुछ नहीं है, कौन करे, कौन कोई मेरा सिफारिश होता तो अप्लाई करते थे. है कि नहीं है, आई वोंट से, बिकॉज़ आई आल्सो सिट ऑन कमिटीज. लेकिन विश्वास यही है, जो इमेज है, इंप्रेशन है, वो समाज में यही है, खत्म होना चाहिए. तो हमारा वो रेपुटेशन अमंग द पीयर्स है वो ये. यूनिवर्सिटीज रिसर्च इनकम फ्रॉम इंडस्ट्री. आप लाएंगे कहीं से पैसा तो झंझट में पड़ गए, कोई लेना नहीं चाहता है. और सही में अगर लिया तो कई बार ऐसा होता भी है. हमारे यहाँ वो इंटीग्रिटी जो है वो है क्वेश्चन. रिसर्च एनवायरनमेंट. There is a very good book by Andre Betel, Universities at the Crossroads. Universities at the Crossroads. Read this book. Very good book. It's a collection of his speeches and articles. Universities at the Crossroads. Research environment क्या बड़ी अच्छी बात है. एक एग्जाम्पल केवल देंगे हम. And you have to collect more. He said something very good. That look, in teachers, इसको ध्यान से सुनिएगा.
मैं केवल वो प्रश्न उठा रहा हूँ, मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर लोग इस लाइन पर सोचे नहीं होंगे। आप कहाँ बैठ के पढ़ती हैं? सेकेंड, कहाँ बैठ के पढ़ती हैं? कहाँ है? आपका रूम है घर में? अपना रूम है, स्टडी रूम? तो कहाँ बैठ के पढ़ती हैं? बेडरूम में या डाइनिंग रूम में, जब खाना वाना खा के लोग सो जाते हैं? एग्जैक्टली आंद्रे बेतेल ने यही लिखा। We teachers do not have big houses, so we don't have a space to sit and study and prepare for our next class or research. How important is it? ये आपने कभी इस लाइन पर सोचा नहीं होगा कि मैं टीचर हूं भाई, मेरी वाइफ कंप्यूटर साइंटिस्ट है, तो ऑफिस जाती है, अपने कंप्यूटर पर बैठती है, उसका रूम है, कंप्यूटर पर काम करेगी। लेकिन मैं टीचर हूं, मुझे तो कल पढ़ाने के लिए आज जगह चाहिए। कहीं बच्चा रो रहा है, कहीं टेलीविजन चल रहा है, पूरे घर मोशन में है, हम कहां बैठ के तैयारी करें? इन्होंने आंद्रे बेतेल ने बड़ी अच्छी बात, ये देखिए, these are important facts. He said, I was in Calcutta, I did not have a big house, I could not prepare my lectures well. When I got a job in Delhi School of Economics and I got a room, I was completely transformed. Teachers must have a space of their own to sit and study. आप में से कितनों को है? चाहे डिपार्टमेंट में, चाहे घर पे होना मुश्किल है। अगर आप सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन नहीं है, तो आपके पिताजी ने जो घर बनवाया होगा तो थोड़ा बड़ा होगा, तो आपको जगह मिल जाएगी। लेकिन आपने किराया लेकर के अगर घर लिया है तो मुश्किल है वो होना। है एक की कहानी यही। हमने क्यों कभी इसको सोचा नहीं कि अगर टीचर है तो उसको स्पेस चाहिए, ऑफिस में चाहिए। हम ऑफिस जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, आई विजिट कॉलेजेस एंड माय आईज वर ओपन व्हेन आई रेड आंद्रे बेतेल। मैं जरूर जाके पूछता हूँ कि टीचर्स बैठते कहाँ हैं? सबके साथ कॉमन रूम में बैठते हैं। तो आप वहां तो लेक्चर तैयार नहीं कर सकती हैं, तो वहां कैसे पढ़ेंगी? घर में बच्चे शोर करते होते हैं, तो वहां कैसे पढ़ेंगी? तो आपका लेक्चर कब तैयार होगा? आपका लेक्चर निश्चित तौर पर सेकंड स्टैंडर्ड होगा। सोचते नहीं है। तो एनवायरनमेंट जो रिसर्च का है, लाइब्रेरीज की दशा देखिए, लैब्स की दशा देखिए फॉर साइंस टीचर्स। I know of colleges in Delhi University, they don't have beaker in their chemistry lab. कौन केमिस्ट्री लैब है? दिल्ली यूनिवर्सिटी है भाई, उसके कॉलेज के लैब में बीकर नहीं है। टीचर अपने पैसे से खरीद के लाता है और एक्सपेरिमेंट कराता है बच्चों से, केवल दिखाता है। हम कॉन्क्रीट एग्जांपल दे रहे हैं कि आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ द कॉलेज, बट देन दैट्स ट्रू। नाउ दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। रिसर्च रेपुटेशन अमंग पीयर्स, हम हमेशा अपने कलीग्स के बारे में यही कहते हैं कि वो तो बेकार, सिफारिश पर दूसरा काम तो करता नहीं है। तो पूरे देश में जरा रिसर्च कर जाओ, ये क्या इस पर आएगा नंबर आपको 18 में से। यूनिवर्सिटी रिसर्च इनकम, सारा फाइनेंस डिवीजन यही मानता है कि टीचर सब घपला कर लेते हैं प्रोजेक्ट लेकर के। तो अगर प्रोजेक्ट मिला है तो सिफारिश पर मिला होगा और दूसरा सब पैसा खाएगा। This is Kranti Vishwas Committee report. I don't want to read it now here. Yeah. Citation of, I don't know why my slides have gone jumbled. Citation of research publication 30%. आपके आर्टिकल को कितने जर्नल्स ने या कितने रिसर्चर ने रिफर किया? आपको पता है सबसे ज्यादा पीएचडी इंडिया से होता है। ये भी रेपुटेशन में है, यूनिवर्सिटी रेपुटेशन में, कि कितने अंडर ग्रेजुएट कन्वर्ट हुए टू पीएचडी। सबसे ज्यादा पीएचडी थीसिस इंडिया में सबमिट हो रही है। एंड यू नो द रिपोर्ट ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑन रिसर्च इन इंडिया, इंडियन पीएचडीज आर नॉट वर्थ द पेपर दे आर प्रिंटेड ऑन। इंडियन पीएचडीज आर नॉट वर्थ द पेपर दे आर प्रिंटेड ऑन। ये भारत सरकार का रिपोर्ट कहता है। आपने क्या पीएचडी किया है? तो ये है रोल ऑफ यूनिवर्सिटी इन स्प्रेडिंग न्यू नॉलेज। यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी न्यू नॉलेज। अभी इतनी बात
सलूजा साहब ने बड़े डिटेल में कहा था, रिसर्च, रीइन्वेंट, university's ability to help industry with innovation, invention and consultancy 2.5%. कितने हमारे प्रोडक्ट्स कन्वर्ट होते हैं इनटू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स? इंडस्ट्री बराबर ये कहती है कि हम आई डोंट नो, अपने से एजुकेशन के कितने लोग हैं, आई हैव टॉक्ड टू मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल्स एंड दे विल ऑल से ये जो बीएड करके आते हैं मेरे कोई काम के नहीं है, वी हैव टू रीट्रेन देम। और सर बीएड वालों से ही काम कराते हैं कॉलेज में। हाँ? और काम तो बीएड वाले ही करते नहीं हैं। वो तो कराना पड़ेगा ना, नहीं वो तो कराना पड़ेगा, लेकिन ये कमेंट इम्पोर्टेंट है। आई एम आल्सो फ्रॉम एजुकेशन, बट देन वी मस्ट से कि स्कूल प्रिंसिपल्स का फीडबैक ये है कि ये जो बीएड करके आते हैं वो मेरे काम के नहीं है, उनको हम अपने लिए अपने तरह से तैयार करते हैं। सिमिलरली जो साइंस के लोग हैं वो इंडस्ट्री कहती है कि मेरे कोई काम के नहीं है, मैकेनिकल इंजीनियर, हम उनको अपनी तरह से तैयार करते हैं, हम कर क्या रहे हैं। But that is important, that university's ability to help industry with innovation, invention and consultancy. If every employer or sector of employment is saying that the graduates are good for nothing, not for our use, then what are we doing? What are we doing? Young persons karna chahiye. I'm only raising questions, and I have taken this times assessment scale as the parameter. Again, I don't agree, but I will definitely read this. Faculty to student ratio. हमारी पॉलिसी ने राइट टू एजुकेशन ने कहा है इस जगह पर कि 1:35 का क्लास साइज होगा। कितने स्कूल साइज 1:35? हम बड़े देश हैं, 18% दुनिया की आबादी है, टीचर्स की कमी है, हमारा क्लास साइज वो हो ही नहीं सकता है। लेकिन इस स्केल पर हम एसेस किए जा रहे हैं। स्टाफ टू स्टूडेंट रेशियो, हर एक स्टाफ पर कितने स्टूडेंट्स? डॉक्टरेट टू बैचलर्स डिग्री रेशियो, कितने बैचलर्स डिग्री आपके यहां से हुए, उसमें से कितने कन्वर्ट हुए टू पीएचडी, मतलब मास्टर्स कितने किए और पीएचडी में कितने गए? ये अब आपको समझ में आएगा कि ये पुराना है। तो डॉक्टरेट टू बैचलर्स कहता है, मास्टर्स नहीं कहता है, बिकॉज दे डोंट हैव मास्टर्स। वी हैव डन अवे विद मास्टर्स इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब मास्टर्स करने की जरूरत नहीं है, या वो एक सब्सिडियरी डिग्री होगा जिसका कि कोई ऐसा महत्व नहीं होगा। बैचलर्स के बाद अब मेरे बच्चे डायरेक्टली पीएचडी में जा सकेंगे। एक्चुअली मैं आपको ये बताता हूँ कि ये राधाकृष्णन कमीशन ने ही कहा था कि पश्चिम में ग्रेजुएशन 4 साल का होता है और सक्सेसफुली काम कर रहा है, लेकिन अभी मेरा देश तैयार नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2012 में 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम लागू किया था। 2012 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम शुरू किया था, लेकिन 14 में चूंकि सरकार बदल गई और वो कांग्रेस सरकार के समय का डिसीजन था, इसलिए उसको रिवर्स करा दिया गया था। पॉलिसी में फिर हम वही लेके आए, 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम होगा। क्यों? Doctorate awarded 6 marks, perhaps we can get all that. Institutional income to faculty ratio, how much do you earn from outside? Do we have scope? Do we have scope? हमारे यहाँ कोई चैनल नहीं है, जबकि हमको मान लीजिए किसी ने दे दिया प्रोजेक्ट, एक बड़ा प्रोजेक्ट कि आप इस पर काम करिए, तो मेरी यूनिवर्सिटी ही पूछेगी इससे हमको क्या फायदा? आपका फायदा होगा, आपके रूम में कुछ फर्नीचर आएंगे, आप इनके लिए काम करेंगे, आप जगह जगह घूमने जाएंगे, इससे हमको क्या फायदा? एक हमने पेपर लिखा है इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, जो ये इंटरनेशनल कंपटीशन से हमने विन किया था, ये कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग का पेपर है। इफ यू गूगल माय नेम यू विल गेट दैट पेपर। उसमें बड़ा अच्छा, हम वो जब लिख रहे थे तो बड़ा अच्छा एक कोटेशन मतलब कई रेफरेंस मिला। Always keep the vice chancellor or the chief executive of your institution on your panel. क्योंकि अगर उसको विदेश जाने का प्रोविजन नहीं है तो आपको क्यों पास करेगा आपका प्रोजेक्ट? Institutional overhead and computer. So it's not from us, our country only. It's global. It's global. Institution income to faculty ratio. अगर आप प्रोजेक्ट लाते हैं तो कैसे लाते हैं और क्या टेक्निक्स है, क्या है, हमारे यहाँ नहीं है। जब प्रोजेक्ट्स डाले जाते हैं तो इंस्टीट्यूशनल ओवरहेड इसमें ऐड किया जाता है। नहीं, वो तो अलग चीज है, वो तो इंस्टीट्यूशन को पैसा जाता है।
लेकिन आपने कहीं अगर रखा कि इसमें विदेश जाने का प्रोविजन है, एक आदमी जाएगा, जैसे कि आपका बहुत सारी इरास्मस का है, ब्रिटिश काउंसिल का है, उसमें होता है कि आपका एक्सचेंज प्रोग्राम में जाएंगे, तो आपका अगर वाइस चांसलर देखता है कि हमको जाने का कहीं प्रोविजन नहीं है तो क्यों पास करें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लिटरेचर में था, जो हम जब लिख रहे थे पेपर हमने पाया कि ऐसा है, दुनिया से रिपोर्टेड है ये। और वो कह रहा है कि भाई कीप इन माइंड द पर्सन हु विल फाइनली अप्रूव यू और योर प्रपोजल has to have some benefit of it. I am not talking out of utopia. I am talking what is happening, and my purpose is obvious and clear. My purpose is obvious and clear. Our universities have actually gone to dogs. वो कैसे बदलेगा? ये प्रश्न आप नहीं उठाएंगे, कौन उठाएगा? And I am not saying कि कल आंदोलन खड़ा कर देना। ये चर्चा होनी चाहिए, ये फुसफुसाना चाहिए, ये कानों कान बात होनी चाहिए कि गलत है, ये बेईमानी है। आंदोलन मत करो, आंदोलन तो ठीक नहीं रास्ता है यूनिवर्सिटीज में, इस पर डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए। मैं कर रहा हूँ, हमको अगर मौका लगा है आज आपसे एक्सचेंज करने का तो मैं ये बातें उठाऊंगा। आप में से कुछ कंडेम करके जाएंगे, कहीं कैसी बातें करता है, ये पढ़े लिखे आदमी की बात करने की बात थोड़ी है। लेकिन मेरी समझ यही है कि अगर यूनिवर्सिटीज को बदलना है तो इन चीज़ों को देखना ही पड़ेगा। ये उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना कि अच्छे डिग्री, अच्छे कोर्सेज, ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी बनाती हैं। I have about 15 minutes. I'll take other part, and tomorrow largely I'll talk on national education policy because I think that देखिए मैं कहानी है सुनाता हूँ और इसलिए सुनाता हूँ कि इन बातों पर रिएक्ट करना चाहिए, हम लोग रिएक्ट नहीं करते। 2004 में नई सरकार बनी थी, मनमोहन जी की सरकार बनी थी। पॉलिसीज कैसे बनते हैं, शिक्षा कैसे चलती है, ये मेरा भी मैं शेयर कर रहा हूँ, इसको जरा आप रिएक्ट करिए। 2004 में सरकार बदली थी, प्रधानमंत्री के सबसे इंपॉर्टेंट दावेदार अर्जुन सिंह थे, लेकिन उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, मनमोहन जी को बना दिया गया। तो इनफैक्ट प्रधानमंत्री अर्जुन सिंह ही थे, बात नहीं सुनते थे किसी की। और मनमोहन सिंह थे तो उनको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट शिक्षा में था। उन्होंने एक नेशनल नॉलेज कमीशन बना दिया, NKC। अभी भी गूगल करेंगे, उसके रिपोर्ट्स हैं नेट पर अवेलेबल, बड़े अच्छे रिपोर्ट है, निकाल के पढ़िए। किसी एरिया पर देखना हो, कुछ एरिया पर बढ़िया काम किया है, जैसे कि गवर्नेंस पर बढ़िया काम किया है, लाइब्रेरी सिस्टम पर बढ़िया काम किया है, टेक्नोलॉजी पर बढ़िया रिपोर्ट्स है। सैम पिट्रोडा उसके चेयरमैन बनाए गए थे। और पता नहीं आप में से कोई नाम सुना होगा, नहीं, प्रताप भानु मेहता, यंगेस्ट आई थिंक 33-34 इयर्स का था प्रताप तब, उसका मेंबर था, 40 मैक्सिमम 35-36 होगा, वो था। आंध्र पटेल थे। इन लोगों ने एक रिकमेंडेशन दिया कि जैसे आपका टेरी है, टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेरी, सॉरी TRAI, आई एम सॉरी, TRAI, टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वैसा एक एजुकेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? कहा कि साहब देखिए, यूनिवर्सिटीज ब्रोशर छाप छाप के बड़े बड़े बताते हैं हम ये पढ़ाएंगे, हम ये करिकुलम, ये, और पढ़ाया नहीं जाता है। उनके पास जाके देखिए तो लैब नहीं है, उनके यहाँ जाके देखिए तो टीचर क्लास में खड़े होकर पढ़ा नहीं सकता है, क्योंकि सिफारिश पर अपॉइंट हुआ है। नॉट दैट कि हम नहीं करते, हम भी सिफारिश पर अपॉइंट करते हैं, क्योंकि और भी सिलेक्शन में बैठना है ना, नहीं करेंगे तो बुला करते। अब स्टूडेंट जाके कह सकता है वहां पर कि साहब ये व्यक्ति हमको इंग्लिश पढ़ाता है, इसको बुला करके यहाँ एक लेक्चर करने कहिए, अगर ये अंग्रेजी में बोल दे तो ठीक है, नहीं तो एक्शन लीजिए अगेंस्ट इट। नाउ बिकॉज इफ दैट इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी, इट विल हैव द लीगल पावर्स, सो the teacher can be called and the university can be punished. How have you appointed somebody and who cannot even speak? ये रिकमेंडेशन कि रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाओ,
ये प्रधानमंत्री के नेशनल नॉलेज कमीशन, फर्स्ट आई विल से द प्राइम मिनिस्टर हैड नो बिजनेस टू सेट अप अ रनिंग नेशनल नॉलेज कमीशन. A commission has a life of its own on a particular idea, theme, something. How can there be a regulatory commission or knowledge commission for the whole period of a government? For that you have the ministry. The ministry will work. How can you have a permanent body? But Prime Minister Manmohan Singh created, and he used to send these recommendations to the minister to implement. None of them was implemented. Now, I am referring to this because when the recommendation to form that regulatory authority was sent to the ministry said we will have a National Commission for Higher Education and Research, NCHER. जो उनका सजेशन आया कि आप रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाइए, तो एक बिल बना कि हम नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च बनाएंगे. और कुछ अंदाज है कि यूजीसी कैसे फंक्शन करती है. यूजीसी इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी, ये थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनी है, तो ऑब्वियसली ये इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस है, ये सरकार के अंदर में नहीं है. सरकार बात तो मोड़ सकती है लेकिन डायरेक्टली उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकती है. ऑटोनोमस है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एक और कारण से. कितनी बार सुना है कि यूजीसी के कोई भी डिसीजन पॉलिटिकल पार्टीज अपोज कर रहे हैं. अभी सुना है कर्नाटक में क्या हो रहा है. वहां के सरकार ने, क्योंकि स्कूल एजुकेशन सरकार देती है, तो जो स्कूल एजुकेशन के डिसीजन होते हैं वो सरकारी डिसीजन माने जाते हैं. यूनिवर्सिटी के डिसीजन यूजीसी लेती है, चाहे वो सरकार के प्रेशर में क्यों ना दे, लेकिन वो माना जाता है कि यूजीसी का है, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है उससे कि भाई यूजीसी ने तय किया कि एपीआई आएगा, तो वो जगदीश कुमार का डिसीजन है या वेद प्रकाश जी का डिसीजन है, यूजीसी का डिसीजन है, वो शिक्षाविद का डिसीजन है, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी इंटरेस्टेड नहीं है. लेकिन वो डिसीजन अगर कैबिनेट ले, चाहे वो कितना भी अच्छा डिसीजन होगा, अपोज होगा ही होगा, वो पॉलिटिकल होगा. Education must be independent of the government. School education as well as higher education. Who controls the school education in this country? आप सब अगर कहीं भी इंटरेस्टेड रहे एजुकेशन में, हर बार ये सुनेंगे आप बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं, आप बच्चों को वो नहीं पढ़ा रहे हैं, आप बच्चों को, यार अभी जो खड़ा हो रहा है, अभी मैं भी 2-3 दिन पहले पर बोल के आया. क्या मैसूर के राजा टीपू सुल्तान पर बड़ा तमाशा खड़ा है. टीपू सुल्तान को क्यों कम या क्यों ज्यादा, क्यों चैप्टर, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां मंत्री तय कर रहे हैं. एजुकेशन मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट. यही काम तो एबेलार्ड और चर्च के साथ हुआ, और यही तो ऑटोनॉमी थी. ऑटोनोमस बॉडी लेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है. देखिए कि उस वक्त की सरकार ने क्या किया. कहा कि हम नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च बनाएंगे, और जरा इसका एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, इसका जो मेन बॉडी होगा वो वाइस चांसलर्स काउंसिल होगा. राइट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वाइस चांसलर काउंसिल. द काउंसिल ऑफ वाइस चांसलर्स मीटिंग्स, फंक्शंस एंड पावर्स. आई हैव नॉट टेकन ऑल चैप्टर्स, 15 चैप्टर स्ट्रक्चर देख करके मैं जानबूझ के अपने कॉलीग्स के साथ शेयर करता हूं. आप ट्रस्ट करते हैं इस कमीशन को? जरा देखिए कि क्या कहती है सरकार. With effect from such date as the central government may by notification in the official gazette specify, there shall be established a central body to be called the Vice Chancellor's Council. कौन लोग होंगे? The Vice Chancellor Council shall consist of the following: the minister in charge of the Human Resource Development Ministry or department in higher education in the central government, ex officio as chairman. How can a political person chair an academic body? How can a political person chair an academic body? बड़ा बढ़िया जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है, politicians can do anything to remain in power. Politicians can do anything to remain in power, even think for the nation.
even thing for the nation. आप मुस्कुराए नहीं, समझ नहीं आया क्या? नेता का काम क्या है? उसका काम है पावर में रहना। मेरा काम क्या है? भाषण देकर के आपको इंप्रेस करना था कि आप दोबारा कहें कि नहीं शर्मा साहब को दोबारा बुलाइएगा। मेरा काम वही है, हम वही कर रहे हैं अभी खड़े होकर। I'm trying to put my best so that you give me 100 marks. What is the job of a politician? To remain in power. The minister says, or the bill says, this bill was not passed by the way. The minister in charge of human resource development, Ministry of Department Higher Education in the central government, ex officio, chairman of the UGC commission, जो अभी जो chairman UGC करता है. Then कौन? Secretary in the Ministry of Human Resource Development, dealing with higher education, ex officio member. Who is a graduate? Eligibility graduate ही है secretary education का. वो उसका ex officio member. Secretary in the Ministry of Science and Technology, Council of Scientific and Industrial Research, ex officio member. None of them is an academic. ये reaction था मनमोहन सिंह के pressure का. 3 but not more than 5 persons who shall be persons having special knowledge or practice, practical experience in respect of higher education to be nominated by the visitor members. Teachers नहीं, academics नहीं. Practical experience in respect of higher education. What do you mean by practical experience? अभी आगे पढ़िए. 3 members of parliament, of whom 2 shall be elected by the house of the people from amongst its members, and 1 by the council of the states from amongst its members as members. What do they have to do with higher education? We have elected them and put them in the parliament and state legislature. They can legislate there. Why would they sit on the decision-making body of the universities? कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है कि सरकार की क्या सोच है, क्या बनाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी को. इसको कंपेयर करो जरा ऑक्सफोर्ड के बॉडी से, इसको कंपेयर करो MIT के बॉडी से. हम आसानी से कह देते हैं अरे ये क्या है, हम ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी. मैं इलाहाबाद बात के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा. An officer not below the rank of Joint Secretary in the Ministry of Human Resource Development dealing with the central universities, ex officio member. Again, what are we to do? Joint Secretary. The chairperson University Grants Commission, ex officio member. And the vice chancellors of all existing specified central universities, ex officio member. A specified universities, which will be specified by the ministry. 3 persons to be nominated by the central government, 1 to represent the Ministry of Finance, and the second to represent Ministry of Youth Affairs and Sports, and third to represent the Ministry of Science and Technology. Other councils of scientific and industrial research as may be decided by the central government members. I think that, yeah. What sort of a body will it be? अगर ये बॉडी तय करेगी यूनिवर्सिटीज कैसे फंक्शन करेंगे. हमको यही बीएन सिंह साहब ने कहा था कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मतलब ग्लोबल यूनिवर्सिटीज और इंडियन यूनिवर्सिटीज में जरा एक कंपैरिजन, और क्या इंडियन यूनिवर्सिटीज का क्या फ्यूचर है. ये फ्यूचर अगर डिसीजन वो लेंगे जो एकेडेमिया में है ही नहीं, जानते नहीं है, वो ऑटोनॉमी समझते नहीं है. यू सी मोस्ट ऑफ दीज आर ब्यूरोक्रेट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, जिनको यस सर कहने की आदत है. वो क्या तय करेगा? हमारी क्या आदत है? बोलो बेटा, तुम्हारा क्वेश्चन पूछो, कोई बात नहीं. हम बात कर रहे हैं एक तरफ तो उसकी, और दूसरी तरफ बॉडी बना रहे हैं जो यहाँ यस सर, मंत्री जी बैठेंगे कहेंगे यस सर. If you have a body like this, what sort of university could you create? We are at the verge of creating the Higher Education Commission of India. The NEP has suggested that we will convert the UGC into Higher Education Commission of India. The bill can be placed any day in the parliament. In fact, it is ready and it can be passed any day. I don't know what is going to come, but then if we have a body like this, we can never expect in the next 100 years any university of India will be the best 100 university of the world. देखिए, एक बात तो मैं बराबर बोलता हूँ. I don't want to test your patience. We teachers become more politically correct than the politicians.
हम क्या विचार रखते हैं ये भी डर के मारे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि ये बुरा मान जाएंगे, सामने दिख नहीं है, ये मुसलमान है जरूर। हमको कहने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू विचार रखता हूँ। No, I'm not telling you, I'm telling as a teacher. I'm telling as a teacher. मैं सनातन विश्वास रखता हूँ, मैं हिंदू विचार रखता हूँ, तो तुम मेरे धर्म से नहीं, मेरे रिलीजन को नहीं मानती होगी, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे धर्म की इज्जत, तुम्हारे रिलीजन की इज्जत करेंगी, कोई बात नहीं। हम पॉलिटिकली करेक्ट होने के चक्कर में वो सब कुछ नहीं बोलते हैं जो बोलना जरूरी है। आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, आप 100 साल तक यूनिवर्सिटी बनाने का प्रयास नहीं करते। क्या है यूनिवर्सिटी, क्या होनी है, वो हमने आपसे डिस्कस किया है। एग्जामिन करो। I'll copy this today. If you have time tonight, read and see. केवल पॉलिसी लिखने से नहीं होगा, उसको सही में लागू करना होगा। और अगर आप नहीं कर सके तो आप 100 वर्षों तक नहीं बनेंगे, क्योंकि हम जो एकेडमिया में हैं वो पॉलिटिशियन से ज्यादा करेक्ट होना चाहते हैं। ये क्रांति विश्वास कमेटी रिपोर्ट का कोटेशन है। ये पहले हमको पढ़ना चाहिए था। डिस्टिंक्ट कैरेक्टर ऑफ एकेडमिक ऑटोनॉमी इज एन एनवायरनमेंट व्हिच एनकरेजेस dissent and innovation as much as consensus and creation of this environment. We may have dissent, we may have, but we must create consensus. Read this report. It has many good things. It was strongly felt that all institutions have different acts, and as such, the government has accepted different ways of functioning of higher education institutions based on their special character. We have accepted as a nation. Every university will have its own act because we must be different. They are created for different purposes. All universities cannot have one act. 2009 में जिस देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि इलेक्शन में जाने के तुरंत पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट पास किया गया और 15 सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाए गए। हमने उसी दिन प्रेडिक्ट कहा था, लिखा है, छापा है कि यूनिवर्सिटी कभी यूनिवर्सिटी नहीं बन पाएगी। जाके देखिए वो 15 यूनिवर्सिटी जो 2009 में बने थे, कोरापुट, गया, मोतिहारी, धर्मशाला, देखो इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्या है। अभी तो 13-14 साल हुए हैं, हम तो नहीं होंगे, तुम लोग होंगे 15-20 साल, 20-25 साल यूनिवर्सिटी नहीं बन पाएंगे। सारे यूनिवर्सिटी का एक एक्ट नहीं हो सकता है, और जिस तरह के एक्ट से पास करके यूनिवर्सिटी बनाई गई है वो यूनिवर्सिटी नहीं है। I had certain other I don't know what happened to my slides. Maybe they are messed up. Pardon? Can we take one or two? Oh, as many questions as you want, and till you